Hello students, welcome back in my online study classes. Here I am back with the topic chemical bonding in the molecular structure. This is our fifth lecture, fifth video of this topic. In previous section, we have discussed about the ionic bond or the electrovalent bond. Other than that, lattice enthalpies की भी बात हमने last class में की थी. In today's class, I am going to discuss the new topic that is bond parameters. So, let us start our topic bond parameters. Firstly, if we just talk about the word parameters, what we mean by the word? So, parameter is actually give the information about the species. Just like parameters किसी इंसान की बात अगर करें तो what is the name of the person? How old he or she is? उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, वो उसके पैरामीटर्स हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस. यहाँ हम बात करें बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड. बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो टर्म्स दे रहे हैं दैट विल बी बॉन्ड पैरामीटर्स. सो we are starting our first bond parameter here, that is bond length. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं about bond length. Yes, bond length. What is bond length? Bond length क्या होती है? The distance, the internuclear distance between the two bonded atom is bond length. What is bond length? The internuclear distance between two bonded atoms. This is the internuclear distance between two bonded atom. वो आपके पास में bond length है. चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं. This is one atom and the another atom. Nucleus and the nucleus. Right? There are two atoms and these are the nucleuses of each. अगर हम बात करें internuclear distance की तो यही आपके पास में क्या है? This is the internuclear distance between two bonded atoms. दो bonded atom के बीच का जो nucleuses के बीच का जो distance है that will be bond length. Suppose that this is the molecule, this is the atom A and this is the atom B. If this is atom A and if this is atom B, तो अगर मैं बात करूं the distance कहाँ से कहाँ तक, from nucleus to the radius, the nucleus to the periphery, वो आपके पास में रेडियस होती है. It means half of the bond length will be radius, right? Radius of the atom A, that is RA. The radius of the atom B is RB. तो RA जो है वो क्या है? RA की अगर हम बात कर रहे हैं, this is the radius of atom A. This is radius. किसके लिए रेडियस है? Radius of atom A, while RB is radius of or radii of atom B. There are two atoms, atom A and the atom B, and these are bonded together. The internuclear distance, मतलब यहाँ इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है that will be bond length. वही आपके पास में bond length होगा, right? अगर मैं bond length की बात करूँ तो bond length will equals with the RA plus RB. यही होगा total internuclear distance, that is the sum total of the
रेडियस ऑफ द एटम ए एंड रेडियस ऑफ द एटम बी। अगर इसकी रेडियस को अगर आप जो है वो टोटल कर ले, ऐड कर ले, वी विल गेट द बॉन्ड लेंथ हियर। वो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में आ जाएगी एंड द बॉन्ड लेंथ इन दिस कंडीशन दैट इज आर ए प्लस आर बी बॉन्ड लेंथ होगा। या आप ये कहें कि हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी द रेडियाई, रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ का हाफ, राइट। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड लेंथ। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की, तो ये आपके पास में दीज टू एटम्स आर बॉन्डेड विद द कोवलेंट बॉन्ड, तो ये आपके पास में जो रेडियस होगी वो होगी कोवलेंट रेडियस। दिस इज कोवलेंट रेडियस व्हेन two atoms are attached together by the covalent bonding, then the radius is termed as covalent radius। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट वैन डर वाल रेडियस की। तो देखिएगा व्हाट इज वैन डर वाल? वैन डर वाल्स रेडियस। व्हाट इज वैन डर वाल रेडियस? देखिएगा वैन डर वाल फोर्स जो है वो आपके पास में कहाँ लगता है? वो आपके पास में लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत वीक टाइप का फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये लीजिए, दिस इज वन मॉलिक्यूल, एडजेसेंट एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए। देयर आर टू होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देयर आर two homoatomic molecules. This is the homoatomic molecule, means the molecule which is formed by the same atom. मान लिया हमने Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल है। This is homoatomic, this is also homoatomic molecule। और हम बात कर रहे हैं about the van der Waal radius। What is van der Waal radius? van der Waal radius is the internuclear distance between the two adjacent homoatomic molecules। दो adjacent homoatomic molecules के बीच का जो distance होता है वो होता है आपके पास में van der Waal radius। तो ये आपके पास में देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance आएगा that will be the bond length here। In this case, this is the bond length, राइट। ये आपके पास में कौन सी वाली बॉन्ड लेंथ है? दिस इज द वैन डर वाल रेडियस। अगर मैं बात करूं सेम एटम की, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट डिनोट्स द बॉन्ड लेंथ हेयर एंड हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी रेडियस हेयर। तो ये लीजिएगा, ये आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो रेडियस है। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड रेडियस, वाइल दिस रेडियस इज द वैन डर वाल रेडियस। ये वैन डर वाल रेडियस है, ये कोवलेंट रेडियस है, राइट। दो एटम जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, टू एटम्स विच आर जॉइंड टुगेदर बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग, वो हमारे पास में कोवलेंट रेडियस होगा। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम दैट इज द रेडियस हेयर, राइट। ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, कोवलेंट रेडियस है। दीज आर द टू होमोएटॉमिक एडजेसेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, टू होमोएटॉमिक एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है एंड द रेडियस इज टर्म्ड एज वैन डर वाल फोर्स ऑफ वैन डर वाल रेडियस। तो चलिएगा, ये आपके पास में बॉन्ड लेंथ हुआ। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी रेडियस एंड दिस इज द वैन डर वाल रेडियस। ये आपके पास में जो है वो वैन डर वाल जो है वो बॉन्ड लेंथ है, वैन डर वाल रेडियस है। जबकि यहाँ अगर मैं बात करूँ, अच्छा रेडियस, दिस इज द बॉन्ड लेंथ, हाफ कर दीजिए इसका, वो आपके पास में आ जाएगा, दैट विल बी द वैन डर वाल रेडियस, while this half of this bond length will be covalent radius RC and the RVW. RVW, R is radius here, VW van der Waal. Van der Waal radius will be half of this length। और अगर मैं बात कर रही हूँ half of this bond length, वो हमारे पास में जो है वो क्या होगा? that will be the covalent radius। Cl2 मॉलिक्यूल का जो है वो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए तो Cl2 मॉलिक्यूल के लिए ये वाला जो आपके पास में जो है बॉन्ड लेंथ, इसका हाफ हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस, while the half of this bond length will be the covalent radius for the Cl2 मॉलिक्यूल। चलिए
हम अब अगर दोनों को कंपेयर करें, वैन डर वाल रेडियस एंड द कोवेलेंट रेडियस, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वैन डर वाल रेडियस विल बी ग्रेटर देन ऑफ वैन डर वाल radius, it will be always higher than of covalent. कोवेलेंट रेडियस से हमेशा जो है वो ये ज़्यादा होता है. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्सेस होते हैं और आपके पास में वैन डर वाल रेडियस विल बी ऑलवेज हायर दैन ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, हमेशा ज़्यादा होगा. तो ये हुआ अबाउट द कोवेलेंट इन द वैन डर वाल रेडियस. अब हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं अबाउट द पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं. यस, अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स विद द आर ए सम टोटल ऑफ आर ए एंड द आर बी. आर ए द रेडियस ऑफ द एटम ए, आर बी इज radius for the atom B. This is the formula for the non-polar bonds. This is the formula for non-polar bonds. While for polar bonds, the bond length can be calculated by the formula, that is bond length is equals with the Ra plus Rb minus 0.09 XA minus XB. Here Ra and Rb are same, radius of the atom A and B respectively, while XA and XB are electronegativity of atom A and atom B respectively. XA the electronegativity of atom A, XB electronegativity of atom B. हालांकि ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ आता नहीं है, बट फिर भी दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोलर बॉन्ड रेडियस. ठीक है, या बॉन्ड लेंथ. पोलर बॉन्ड लेंथ एंड द नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है. चलिए देखिए, यहाँ हम एक बात और कर लेते हैं, एंड दैट इज एक्स ए शुड बी ग्रेटर देन ऑफ एक्स बी. एक्स ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ एक्स बी, ज़्यादा होना चाहिए. अब दिस इज नॉट मस्ट कि ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं दो एटम की ए एंड बी, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आप उसको एज एटम ए कंसीडर कीजिए, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स ए आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा. एक्स ए विल बी ग्रेटर देन ऑफ एक्स बी. तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फॉर द नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड द पोलर बॉन्ड्स कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं. और ये हुआ अबाउट द बॉन्ड लेंथ. चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या क्या हैं? यूनिट्स फॉर द बॉन्ड लेंथ. Bond length can be measured in angstrom, it can be measured in picometer, it can be measured in nanometer, because we know it very well. बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसीलिए जो है वो क्या किया जाएगा, छोटे यूनिट्स में मेजर किया जाएगा. एंगस्ट्रम दैट इज 1 into 10⁻⁻10 मीटर, 1 into 10⁻⁻12 मीटर, 1 into 10⁻⁹ मीटर. इतना छोटा जो है वो यूनिट्स के साथ में बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है, छोटे यूनिट्स इसको डील किया जाता है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज टू शॉर्ट, बहुत कम होती है. इस वजह से दीज आर द यूनिट्स इन विच वी कैन मेजर द बॉन्ड लेंथ. अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं. एक्सरे डिफ्रैक्शन मैथड, एक्चुअली दीज आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. By using spectroscopic techniques, we can determine the bond length. Bond length measure कैसे करते हैं? Spectroscopic techniques से जो है वो आप measure करते हैं. ये हायर स्टडीज जब आप करेंगे तब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक पूरा जो है वो पेपर जो है वो पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री. The methods are X-ray diffraction method, we can determine the bond length by
X-ray diffraction method, by electronic refraction method. These are the methods by which electronic diffraction method. These are two methods by which we can, दोनों spectroscopic methods हैं, इनसे जो है वो bond length को measure जो है वो किया जाता है. So this is all about bond length. Now we are going to discuss about the factors. कौन कौन से ऐसे factors हैं जो कि bond length को affect करते हैं. So keep watching. Yes, factors affecting की बात करते हैं. The first factor which affect to the bond length, that is atomic size. देखिएगा, atomic size आपके पास में जितना ज़्यादा होगा, internuclear distance उतना ही high, internuclear distance उतना ही ज़्यादा, means bond length भी ज़्यादा. If atomic size is higher, तो आप बात कर सकते हैं atomic size जितना ज़्यादा, internuclear distance उतना ही ज़्यादा, तो bond length भी उतना ही ज़्यादा. चलिए एग्जाम्पल लीजिए. FF, CC, BR, I. What will be the order of the bond length here? Bond length का order क्या होगा? We know it very well. When we move down to the group, हमारे पास में जो है वो atomic size increase होता है due to the increasement in the number of the shells. तो ग्रुप में नीचे जाएंगे, bond size increases here with the increasement in the atomic size. Atomic size ज़्यादा, internuclear distance ज़्यादा, bond length भी ज़्यादा होगा. Next ले लीजिए HF, HCl, HBr in the HI. If we'll just talk about this example, यहाँ पे भी order जो है वो remain same because hydrogen is common here, but the size of iodine, bromine, chlorine, fluorine, मतलब the size of this atom increases here when we move right to the left. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, members of the same group, group number 17, group में ऊपर से नीचे जाएंगे, size वापस increase हो रहा है. Due to the increasement in the atomic size, there will be high internuclear distance, और जितना ज़्यादा internuclear distance means bond length उतना ही ज़्यादा होगा. This is the fact of atomic size on the bond length. Next बात कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो अफेक्ट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो अफेक्ट्स टू द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा आपके पास में होगी, आपके पास में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा. देखिएगा क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मीन्स पोलैरिटी हाई, पोलैरिटी हाई मीन्स internuclear distance high, सॉरी वेट कीजिएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा मतलब इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ज़्यादा, इंटरैक्शन ज़्यादा, इंटरैक्शन जितना ज़्यादा मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही कम, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कम है means bond length will also decreases here. With increase in the electronegativity, bond length आपके पास में जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. एग्जाम्पल लीजिए आप, CH, NH, OH in the FH, right? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, when we move right to the लेफ्ट टू द राइट, तो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी. तो ये आपके पास में ऑर्डर होगा, द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ हेयर, राइट. चलिए दूसरी बात हम कर लें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, दैट इज HI, HBr, HCl, HF. Now tell me, when we
go down to the group, electronegativity decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब ये आपके पास में ऑर्डर रहेगा ऑफ द बॉन्ड लेंथ. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स पे आपने जो है वो बॉन्ड लेंथ को चेक किया है. तो दीज आर द टू फैक्टर्स, एटॉमिक साइज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, देखते हैं. थर्ड फैक्टर इज परसेंट एस कैरेक्टर. What we mean by the percentage character, हाइब्रिडाइजेशन से अब आप जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो चेक कर रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन वी विल टॉक अबाउट दिस हाइब्रिडाइजेशन इन द नेक्स्ट क्लासेस. हमारे 4th चैप्टर का ही टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे डिस्कस करेंगे. देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3, इट कैन बी sp2 और इट कैन बी sp. हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हो सकता है. If we'll just talk about the percent character here, 50% S, 50% P, 50-50% है sp2. कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पर कितना होगा, इट विल बी 33.33% जो है वो आपके पास में एस कैरेक्टर आएंगे. एंड हेयर इट विल बी 25% परसेंटेज कैरेक्टर निकाला. कैसे निकाला, टोटल कितना है 4 में से एस का जो है वो परसेंटाइल कितना है 25, राइट. तो ये हमारे पास है sp3 sp2 इन द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर परसेंटेज कैरेक्टर. इसकी बात हम इन फर्दर क्लासेस, आगे वाले क्लासेस में करेंगे. दिस इज परसेंटेज कैरेक्टर. If percentage character increase here, परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपके पास में उतना ही कम होगा. दिस इज द रिलेशनशिप और द फैक्टर. हाइब्रिडाइजेशन इज द फैक्टर विच अफेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ. अगर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कम होगा. sp हाइब्रिडाइजेशन है और कम हो जाएगा, राइट. तो this is hybridization by which we can compare the bond length here. ठीक है, चलिए और एक बार हम देखें. if there is single bond, कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिड होता है. डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट. sp 50% एस कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर. परसेंटाइल निकाल लीजिए आप यहाँ पे. टोटल 4 है, उसमें से s का परसेंट कितना है, एक s है, 3 p है, 25%, ऐसे ही 33.33%. तो दिस इज द फैक्टर विच अफेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ. 4th फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज रेजोनेंस. This is another phenomenon which we will discuss here in this chapter. इसके अलावा आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. चलिए, रेजोनेंस क्या होता है. रेजोनेंस ये होता है कि सिंगल एंड द डबल बॉन्ड्स, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्मा एंड द पाई बॉन्डिंग. सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, चलता जा रहा है. Have a look what is present here. Alteration, एक के बाद एक है, अल्टरेशन बिटवीन द सिंगल एंड द डबल बॉन्ड. अब क्या होता है इन दीज टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स वेयर द अल्टरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द सिंगल एंड द डबल बॉन्ड, ये क्या कर सकते हैं, इट कैन डिलोकलाइज इन द स्ट्रक्चर. मतलब ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, और ये वाला जो है वो आपके पास में नेक्स्ट पे मूव कर जाए, राइट. तो क्या चलता रहता है, अल्टरेशन जो है वो अगर प्रेजेंट है बिटवीन द सिंगल एंड द डबल बॉन्ड तो डीलोकलाइजेशन चलता रहता है. मीन्स द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, द डबल बॉन्ड, वो क्या करता रहता है,
घूमता रहता है, डिलोकलाइज होता रहता है, एंड दिस इज द फिनोमेनन रेजोनेंस, राइट। इसका डीप स्टडी करेंगे इन चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर में आगे भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है वो देखेंगे। चलेगा, टॉपिक पे आइए, हाउ रेजोनेंस कैन अफेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ, वो हम बात कर रहे थे। तो देखिएगा होता क्या है, आपके पास में बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है रेजोनेंस। कैसे अफेक्ट कर रहा है, देखिए सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड लेंथ, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की और भी कम, राइट। अब क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं, मींस इसका क्या होएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड है ना, जो पहले सिंगल था वो अब डबल हो गया है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो क्या हो रहा है, हेयर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज ऑफ सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होता है, किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डबल बॉन्ड। चलेगा, ये डबल था, यहाँ से शिफ्टिंग हुआ, शिफ्ट होकर के ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, राइट। नाउ हैव अ लुक, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, अभी बात किया था, मीन्स हेयर द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू द रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, राइट। Due to this, bond length of the single bond decreases here and bond length of the double bond increases here, और ये रीज़न है कि bond length अफेक्ट कर रही है किसके साथ, रेजोनेंस के साथ, और यही रीज़न हमारे पास में होता है ऑफ बेंजीन। एंड ऑफ बेंजीन रिंग की बात किया जाए, दिस इज द एरोमेटिक रिंग कंपाउंड, आपने हाइड्रोकार्बन 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इन बेंजीन ऑल बॉन्ड्स हैव सिमिलर, सबका जो है वो बॉन्ड लेंथ इक्वल है, चाहे सिंगल है चाहे डबल है, ऑल हैव द इक्वल बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बात कर रही हूँ अबाउट द सिंगल बॉन्ड लेंथ, दैट शुड बी 1.54। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 होता है। 1.54 जो है वो आपके पास में एंगस्ट्रॉम सिंगल बॉन्ड के लिए जो है वो बॉन्ड लेंथ है, राइट। फॉर डबल बॉन्ड द बॉन्ड लेंथ इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। This is the bond length of single bond, 1.34 angstrom. The bond length for double bond here, while the bond length in the benzene that will be 1.39 angstrom. देखिए क्या हुआ, 1.54 से डिक्रीज हो गया है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया है, एंड ईच एंड एवरी बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन हैव द बॉन्ड लेंथ दिस, ये बॉन्ड लेंथ हो गया। इट मीन्स resonance affect to the bond length here. Next and the last factor which affect to the bond length is bond order. Bond order, this is also called bond multiplicity. The number of bond, right? Number of bonds present in two atoms, present between two atoms, that is bond order और bond multiplicity. इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे. दिस इज द बॉन्ड पैरामीटर. यहाँ देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे अफेक्ट करता है. बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा. देखिए व्हाट वी मीन बाय द बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी और द नंबर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स. एग्जाम्पल लेते हैं, H2 molecule, O2 molecule and 2 molecule. There is triple bond, double bond and single bond present between these molecules. Right? Between the atom of these molecule. अब देखिए सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है. अभी बात किया था, मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगा,
यहाँ कम और यहाँ और कम। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, दिस इज 1, bond order is 2 and 3 here. Between the nitrogen and the nitrogen there are 3 bonds, between oxygen and the oxygen 2 bonds, hydrogen के बीच में एक bond. तो bond order कितना, it is 1, 2 and 3. तो ये हमारे पास में हुआ about the bond order. When bond order increases here, the bond length decreases. With increase in the bond order, bond length decreases here. और ये हुए factors जो कि bond length को affect करते हैं. हम next parameter की जो है वो बात करेंगे. Yes. Next parameter is bond angle here, which we are going to discuss. And what is bond angle? Bond angle is the angle between the two bonded atoms. क्या है bond angle? Angle between two bonded atoms. दो bonded atoms के बीच में क्या angle है, वही आपके पास में bond angle होगा. चलिए दूसरे टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द orbitals which contain the bonded electron around the central atom. central atom के अराउंड कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किया हुआ है, उनके बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल होगा. चलिएगा बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो इसको यूनिट जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है. वी नो इट वेरी वेल, डिग्री बाय डिग्री आप रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए जस्ट लाइक एग्जाम्पल की बात हम करें, दिस इज द CH4 मॉलिक्यूल एंड वी नो इट वेरी वेल दैट CH4 मीथेन हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. The geometry is tetrahedral here, and this CH4 molecule, the bond angle is 109 degree and 28 minutes या 109.5 डिग्री भी से बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड एंगल हेयर. द बॉन्ड एंगल इन द मीथेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, आपके पास में बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. तो ये हुआ बॉन्ड एंगल, डिग्री से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टू द बॉन्ड एंगल. चलिए सबसे पहला फैक्टर अगर मैं लेने जाऊं तो मैं बात कर लेती हूं अबाउट द लोन पेयर्स. ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर अफेक्ट टू द बॉन्ड एंगल. देखिएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपके पास में उतना ही कम हो जाता है. नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपके पास में उतना ही कम आएगा. चलिए एग्जांपल लेते हैं. CH4 की अभी हमने बात की. NH3 वी नो इट वेरी वेल दैट वन लोन पेयर इज हियर. H2O की बात कीजिए, 2 lone pairs are here. What will be the order of the bond angle here? तो वो होगा आपके पास में CH4 के लिए सबसे ज़्यादा, then NH3 ammonia, then H2O. नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज, साथ ही साथ में जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और ये आपके पास में जो बॉन्ड एंगल आता है दिस इज 107.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली and this is 104.5 degree approximate, right? This is the bond angle which decreases with increase in the lone pair. आप देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअल में लोन पेयर जो रिपल्शन है ये आप पढ़ेंगे इन द थियरी. अभी आपके पास में जो है वो VSEPR जब आएगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे. लोन पेयर इंटरेक्शन, लोन पेयर बोन पेयर इंटरेक्शन and the bone pair interaction. सबसे हाई इंटरेक्शन है लोन पेयर इंटरेक्शन. लोन पेयर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा हाई है, फिर लोन पेयर है और सबसे कम बोन पेयर इंटरेक्शन है, राइट. Here is no lone pair,
here is no lone pair. तो रिपल जो है वो आपके पास में जो है वो यहाँ पे ये जो है वो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, राइट। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। आफ्टर दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ये पास आ गए हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ड्यू टू दैट इनके बीच का एंगल कम हो जाता है एंड दैट इज 107.5 डिग्री। जबकि यहाँ पे इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट टू द बॉन्ड एंगल, जो कि हमने सबसे पहले बात किया लोन पेयर का। लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। यस, सेकंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल, दैट इज परसेंट एज कैरेक्टर, or we can say hybridization. If the hybridization is sp, then percentage character is 50%. In sp2 hybridization, it is 33.33%. In sp3 hybridization, the percent S character is 25%, right? हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, देयर कैन बी हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3. If sp3 hybridization is here, it means the percentage character is 25%. Overall 100 में से जो है वो आपका 1/4 पार्ट है, तो 25%, 50-50 and 1/3 पार्ट ऑफ 100%, दैट इज 33.33. तो ये हमारे पास में आया अबाउट द परसेंट एज कैरेक्टर. चलिए अब इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं. If the sp hybridization is here, geometry will be linear. In sp2 hybridization, it is trigonal planar. sp3 tetrahedral geometry, right? sp3 hybridization tetrahedral geometry, sp2 hybridization geometry is trigonal planar, or sp hybridization linear geometry. We will discuss this hybridization about the geometry in the upcoming classes. upcoming videos में हम इन topics को discuss करेंगे. फिलहाल देखिए, if the structure is linear sp और इसका bond angle भी आपके पास में fix होता है, that is 180 degree. The bond angle in the trigonal planar structure, it is 120 degree, and for tetrahedral 109 degree and 28 minutes. This is the bond angle here. तो चलिए बात अगर करें percentage character, यहाँ क्या हो रहा है, decreases here with decreasement in the percentage character, bond angle also decreases here. तो percentage character जितना कम, बॉन्ड एंगल भी उतना ही डिक्रीज होगा. परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है. और इसी के साथ में हमारा आज का ये टॉपिक बॉन्ड एंगल भी कंप्लीट होता है. हम अब बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो टेक सो मच टाइम, बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास ना हो, दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग दिस हेयर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द अनदर बॉन्ड पैरामीटर्स. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड दिस. और अगर आपने क्लास को एंजॉय किया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. वन मोर थिंग, कीप वॉचिंग.